बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वेलकम करदा जी तुहानूं अपने यूट्यूब चैनल काशी मोबाइल ते। यार खुदा दा नाम मन्नो, कोई खौफे खुदा भी होंदा है। एक यूट्यूबर कह रहा है जी चंद दिनों तक स्कीम दोबारा लॉन्च हो रही है, जबकि ऐसी कोई भी गल गवर्नमेंट हल्के डिस्कस नहीं हो रही। एक यूट्यूबर कह रहा है जी बजट खत्म हो गया, इस वजह से तुहानूं पैसा नहीं मिलना, जबकि गवर्नमेंट क्लियर दस चुकी है, असीं भी कई वीडियो दस चुके हैं कि गवर्नमेंट तुहानूं कर्जा नहीं दे रही, कर्जा तुहानूं बैंक दे रहा है। गवर्नमेंट सिर्फ वो उत्ते सूद की रकम अदा कर रही है, यानी कि अगर लख पिछे 20,000 सूद है तो लख रुपया बैंक देगा, 20,000 रुपया गवर्नमेंट देगी। इस चीज़ को समझो कि ज़्यादा रकम बैंक ने देनी है, गवर्नमेंट ने ज़्यादा रकम नहीं देनी, उन्हें सिर्फ वो सूद की मद रकम अदा करनी है ताकि तुहानूं सूद अदा ना करना पवे। जिहड़ी देर हो रही है तुहानूं कार्ड रिसीव होने और तुहाडी अपडेटिंग आने उहदी असल वजह जिहड़ी है अनट्रेड अमला, नाकस मनसूबाबंदी, चैक एंड बैलेंस का बेहतर निज़ाम ना होना ते दोवां स्कीमां लई एक ही टीम नूं डील करन दे लई मजबूर करना, यानी कि एक ही टीम बैठी हुई है जिहड़ी दोनों स्कीमां नूं डील कर रही है, आसान कारोबार कार्ड नूं भी ते आसान कारोबार फाइनांस नूं भी। ਇਹ ਨੇ ਉਹ ਅਸਲ ਵਜੂਹਾਤ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਵਾਮ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸੂਲੀ ਤੇ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕੁਝ ਖਾਸ ਮਾਲੂਮਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਦੇਖਿਓ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਮੁਕੰਮਲ ਦੇਖੋ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਕਿਪ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਵੀਡੀਓ ਮੁਕੰਮਲ ਦੇਖਿਓ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਕਿਪ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 4 ਟਿਕ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ 4 ਟਿਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ। ਸਿਰਫ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਵੀ 15-20 ਦਿਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਡ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਡ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾਂ ਕਿ 15-20 ਦਿਨ ਨੇ, ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਡ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਐਵੇਂ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਈ ਸੀ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਲੈ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈ ਗਏ ਬਹੁਤੇ ਤੇ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਹੋ ਗਈ ਖਰਾਬ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮਮਾਲਕਾਂ 'ਚੋਂ ਮਕੈਨਿਕ ਸੱਦੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋ ਸਕੀ। ਫਿਰ ਕਾਮੋਕੀ 'ਚੋਂ ਤੇ ਸ਼ਦਰੇ 'ਚੋਂ 2 ਬੰਦੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਖੁਰਸ਼ੰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਸ਼ੀਨ ਚੱਲ ਪਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦਾ ਇਖਤਤਾਮ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇੱਡਾ ਵੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਕਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ 15-20 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰੀ ਨਹਾਇਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਚੱਲਾਂ ਕਿ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਂਕ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਕਰਾਸ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਐਪ ਤੋਂ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਰਾਸ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਸ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਦਰਾ ਨੇ ਕਰਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਾਦਰਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਟੇਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਰਾਸ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਅਗਰ ਨਾਦਰਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਾਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾਦਰਾ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਾਸ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਰਾਸ ਕਿਉਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਡਾਟਾਬੇਸ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਦਰਾ ਦੇ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਹੈ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ, PMD, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਨਾਦਰਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਡਾਟਾਬੇਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਨਸਾਨੀ ਹੱਥ ਮੁਲਵਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਨਸਾਨੀ ਹੱਥ ਸਿਰਫ ਬੈਂਕ BOP ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਵਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚੈਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾਦਰਾ ਤੋਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਰਾਸ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਕ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਦੇਰ ਦੀ ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਖੋਲੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ 1-2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੈਪਚਾ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਲਾਗਇਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕੈਪਚਾ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਗਇਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਮਾਲੂਮਾਤ ਠੀਕ ਸੀ, ਹਜੇ ਵੀ ਮਜ਼ੀਦ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਐਂਡ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਚੇਂਜਿੰਗ ਦੇਖੋਗੇ ਔਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਅਪਡੇਟ ਦੇਖੋਗੇ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਫਾਰਗ ਕਰਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਢਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਫਾਰਗ ਕਰਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਾਰਡ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 3 ਟਿਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਬੈਂਕ 'ਚ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਬੈਂਕ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਜੇ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੈਂਕ ਅਮਲੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਾਂ ਡੇਟਾ ਸ਼ੋ ਨਾ ਹੋਣਾ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਮਤਲਬ ਆ
ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਹਜੇ ਵਾਕਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਕਾਫੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਯਾਨੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਫੀ 3 ਟਿਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਰਕ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਮੈਂ 4 ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਵਾਂ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਆਸਾਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਸਦੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਤਮਿਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੇਰੀ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈਲਪਲਾਈਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਟੋਟਲ 5 ਜਾਂ 6 ਦਫਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ 4 ਕਾਲਾਂ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ 4 ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਪੂਰੀ ਸੁਣੋਗੇ, ਮੈਂ ਸਪੀਡ ਜ਼ਰਾ ਤੇਜ਼ ਰੱਖਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਵਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਦਾ ਅਲਫਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਏ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾइक ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ शेयर करो। अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद। बैंक ऑफ पंजाब से उम्र रुपा बात करूँ, क्या मदद कर सकते हैं आपकी? वालेकुम अस्सलाम आंटी जी, काशिम मैं इकबाल बात कर रहा हूँ। मेरा बैंक का आसान कारोबार कार्ड का स्टेटस जानना चाहता हूँ अपना। कौन सा कार्ड है आपका? आसान कारोबार कार्ड 10 लाख वाला जो है। अच्छा, आईडी कार्ड नंबर? ठीक है, बहुत शुक्रिया, राब्ते में देगा। जी जी मैडम। सर आपने अप्लाई कब किया था? मैंने तकरीबन ईद के बाद, यानी कि मुझे काफ़ी दिन हो गए अप्लाई अभी किए तक हमारे पास तो आपकी दरख्वास्त नहीं मसूल हुई, तो फिर आप ऐसा कीजिएगा काइंडली कि PITV पोर्टल की हेल्पलाइन पे रब्ता करके इसका स्टेटस जाने, ठीक है? अच्छा मैडम, मुझे थोड़ी सी एक चीज़ बता दें। अगर हम आपको कॉल करते हैं, आप 2 चीज़ें कहते हैं। एक आप कहते हैं कि हमें आपका स्टेटस शो नहीं हो रहा, और एक आपने जैसे अब बात की कि अभी तक हमारे पास आपका डाटा नहीं आया। क्या ये दोनों एक ही चीज़ को आप 2 अल्फाजों में कहते हैं या दोनों अलग अलग मतलब है? एक ही बात है सर। दोनों एक ही बात है, यानी कि जो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं वो कह देते हैं स्टेटस शो नहीं हो रहा है, और जो मेरे और आप जैसे होते हैं वो कहते हैं डाटा शो नहीं हो रहा। जी चलें ठीक है, नाराज़ नहीं होना मैडम। मुस्कान फातिमा बात कर रही हूँ सर, बैंक ऑफ पंजाब से। जी फरमाइएगा, क्या जानना चाह रहे हैं आप? जी मैडम, मैं अपना आसान कारोबार कार्ड का स्टेटस जानना चाहता हूँ। ठीक है, मुझे आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर बताइए प्लीज़। 32303 32303 करते हैं। अच्छा, क्या आपका लाइन पे रहेगा? नाम बताइए अपना मुखातिब करने के लिए। काशिफ इकबाल। काशिफ इकबाल। माजरत के साथ काशिफ इकबाल साहब, आपको बताना चाहूँगी आपके लोन का कोई भी स्टेटस इस वक्त हमारे पास पोर्टल पर रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, ठीक है? ना ही आपका कार्ड बना है। लिहाजा जहाँ पर आपने अप्लाई किया वहाँ पर स्टेटस कंफर्म करें। अगर वहाँ पर अभी पेंडिंग में आ रहा है या जो है वो 3 वेरिफिकेशंस हो गई हैं, नेक्स्ट पेंडिंग में है, तो अभी वेट करें। जब रिजेक्ट होगा तो आपके नंबर पर आपको कंफर्मेशन मैसेज मिल जाएगा, ठीक है? ठीक हो गया। इसके अलावा मैडम, ये आप जो ये बता सकती हैं कि बैंक ऑफ पंजाब किस बुनियाद पर रिजेक्ट या सिलेक्ट करता है? सर, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री चेक की जाती है, ECIB की रिपोर्ट चेक की जाती है, ठीक है? आपने इससे पहले कोई लोन तो नहीं लिया हुआ, ठीक है? जो लोन दिया हुआ है उसका NOC लिया या नहीं, क्लियर है या नहीं है, ठीक है? और जो गवर्नमेंट ने कुछ उन्हें जो है वो क्राइटेरिया बताया हुआ है, उसका हमें भी नहीं पता होता, ठीक है? अच्छा मैडम, गवर्नमेंट ने कुछ क्राइटेरिया बताया होता है चेक करने के लिए, वही डिपार्टमेंट चेक करता है। चलो मुझे ये बता दें, जैसे आपने अभी कहा कि जो लोन लिया हुआ है उसको आपने क्लियर किया है। अगर मैंने फॉर एग्जांपल लोन लिया हो पहले, मैं वो पे ना किया हो, लेकिन अब जब मैंने ये अप्लाई किया है उसके बाद मैंने उसे क्लियर कर दिया है, NOC ले लिया है, अगर तो क्रेडिट हिस्ट्री जब आपने पे किया उससे पहले आपकी क्रेडिट हिस्ट्री चेक हुई होगी या ECIB चेक हुई होगी, तो आपका लोन रिजेक्ट हो चुका होगा, ठीक है? नहीं, जैसे आपने अभी कहा है ना कि आपके पास डाटा नहीं आया। सर, मैं आपको आपके सवाल का जवाब देना चाह रही हूँ कि मिसाल के तौर पर आपकी 10 तारीख को ECIB की रिपोर्ट चेक हुई है, आपने लोन क्लियर किया 11 तारीख को, 12 तारीख को। उससे पहले आपका जो क्रेडिट हिस्ट्री का या ECIB रिपोर्ट का स्टेटस जो है
वो ठीक नहीं आ रहा था लोन की वजह से, तो लोन आपका आसान कारोबार वाला रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर वहाँ पर अपडेट हो चुके हैं, आप एनओसी ले चुके हैं, लोन क्लियर कर चुके हैं और अभी तक आपकी ईसीआईबी की रिपोर्ट चेक नहीं हुई है, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा। इसके अलावा तो देखिए, हम खुद से तो नहीं बता सकते ना कि वो रिजेक्ट होगा या अप्रूव होगा या उसकी क्या, ये डिपार्टमेंट ने चेक करना है। हमारे पास सिर्फ स्टेटस आएगा कि ये स्टेटस है, ये रीज़न है, हम सिर्फ आपको रीज़न बता सकते हैं। अच्छा, काइंडली आप मेरी बात सुनिएगा। सबसे पहले तो आपकी ये बात बहुत अच्छी लगी कि आपने कहा कि इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला बेहतर करेगा। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि ईसीआईबी की रिपोर्ट बैंक चेक करता है या दूसरा महकमा चेक करता है? बैंक चेक करता है। तो जैसे मैंने आपको अभी आईडी का नंबर बताया, आपने मुझे कहा है कि आपके अभी हमारे पास डाटा नहीं आया। इसका मतलब है कि अभी तक ईसीआईबी की रिपोर्ट चेक नहीं हुई, ऐसा ही है? ये सर हम कंफर्म नहीं कर सकते, क्योंकि ये ईसीआईबी की रिपोर्ट और क्रेडिट हिस्ट्री के लिए भी बैंक ऑफ पंजाब के कुछ अलग मखसूस से डिपार्टमेंट्स है जो ये तफसीलात चेक कर रहे हैं। बिल्कुल, हमें उन्होंने जो हेल्पलाइन पर सिर्फ एक पोर्टल प्रोवाइड किया हुआ है जिससे हम आपको स्टेटस बता सकते हैं, इससे ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। अरे चलें, आप मुझे ये मेरी बात सुन लें, शायद आपके पास इंफॉर्मेशन हो, अगर नहीं होगी तो अलग बात है। जी कि जी जो बताइए। हम एनओसी लेते हैं अपना लोन क्लियर करके, तो ये फौरी से अपडेट हो जाता है। जबकि मैंने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में कॉल करके पूछा था तो उन्होंने मुझे बताया था आपको बैंक करप्ट की लिस्ट में से निकलने में से 6 मंथ लगते हैं तकरीबन। ऐसा ही है तो जी। वो तो उस अगर उसी चीज को मद्देनजर रख के देखें तो जिसने लोन लिया है वो बैंक करप्ट था, वो बेशक अब एनओसी सर ले जब भी ले तो वो तो हम्म, कैंसल ही है। आपकी बात ठीक है, लेकिन सर अगर आपने लोन लिया होता ना तो वो भी आपकी डिटेल्स आ जाती हैं कि आपने जो है ये पहले लोन लिया हुआ है या आपके नाम पर इतना लोन अप्रूव हुआ हुआ है, ठीक है। लेकिन और अगर आपने वो पे कर दिया हुआ है तो वो भी स्टेटस आ जाएगा कि कितना लोन जो है वो आपने पे कर चुके हैं आप, ठीक है। तो वो डिपार्टमेंट्स के पास उसके अवेलेबिलिटी होती है, एक्सेस होती है, वो वहाँ तक रसाई कर सकते हैं, ठीक है। उनके पास उस चीज़ का अख्तियार होता है। ये हमारे पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि 6 महीने एनओसी को अपडेट होने में लगता है। ये आपके डिपार्टमेंट ने ही आपका चेक करके लोन को प्रॉपर आपकी वेरिफिकेशंस करके, अगर तो आप लोन पे कर चुके होंगे तो उनके पास वो भी स्टेटस आ जाएगा कि लोन पे हो चुका है। अगर लोन नहीं पे हुआ होगा या वो क्लियर नहीं, आपका ये जो है वो क्रेडिट हिस्ट्री क्लियर नहीं शो होगी, तब भी आपको रीज़न बता दी जाएगी। तो जो भी मसला होगा सामने आ जाएगा आपको उसकी डिटेल्स भी मिल जाएंगी। अच्छा, क्या आप ये मुझे बता सकती हैं कि गवर्नमेंट मुलाजमीन ने जो अप्लाई किया हुआ है, मेरे कुछ गवर्नमेंट मुलाजमीन है रिलेटिव, उन्होंने अप्लाई किया हुआ, उनके 3 टिक हो गए हैं। बैंक ऑफ पंजाब में अभी तक उनका कोई भी, यानी कि मैंने पहले भी आपसे कई दफ़ा पूछा है तो आप लोगों ने यही हाँ जी, जवाब दिया वो कि स्टेटस अपलोड नहीं हुआ, स्टेटस शो नहीं हो रहा, जबकि उन्होंने अप्लाई जी किया हुआ उन्हें 2 से 3 मंथ हो चुके हैं। तो क्या वो जी रिजेक्ट समझे जाएंगे? क्या गवर्नमेंट मुलाजमीन या उनका भी कोई उम्मीद है? वेट कीजिएगा, ये मैं आपको कंफर्म बता देती हूँ। जी जी, मेहरबानी आपकी। वेट कीजिएगा। लाइन पे वेट कीजिए। वेट कीजिए। जी सर, ये कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है ना वो डिपेंड करता है कि अगर एलिजिबल हैं कस्टमर तो उनको वो लोन मिल जाता है। डजेंट मैटर कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय या प्राइवेट एम्प्लॉय, ठीक है। अप्रूव हो रहे हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के भी लोन। हाँ, थैंक यू मैडम, आपने बहुत अच्छा डील किया। क्या अब मैं आपसे जज़ाकल्लाह। छोटी सी इजाज़त तलब कर रहा हूँ कि आपकी ये कॉल रिकॉर्ड की है, जी ये अपने ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कर सकता हूँ ना? आपको कोई इशू तो नहीं है?
सर देखें, आपकी बात बिल्कुल बजा है, लेकिन आपके पास राइट है, आप जो भी सर्विस लेने आ रहे हैं आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सेफ्टी और सिक्योरिटी आपको भी रखनी चाहिए, हमारी तो कॉल ऑलरेडी रिकॉर्डिंग लाइन पे है, ठीक है। तो बैंक की कॉल तो ऑलरेडी रिकॉर्डिंग कॉल पर होती है, लेकिन अगर आपने खुद रिकॉर्डिंग कॉल किया तो उसकी प्राइवेसी के जिम्मेदार आपको खुद होना चाहिए। नहीं, वो मैं जिम्मेदार हूँ, मैं जस्ट ये पूछना चाह रहा था क्योंकि ये एज अ कोई इंफॉर्मेशन। मसला नहीं। हाँ, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। शुक्रिया। बैंक ऑफ पंजाब हेल्पलाइन के नंबर से कॉल करके खुफिया मालूमात की पूछता। बैंक ऑफ पंजाब कॉल करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, तैयब बात कर रहा हूँ हुकूमत पंजाब की आसान कारोबार हेल्पलाइन से। जी फरमाइए, क्या कर सकता हूँ? वालेकुम अस्सलाम जी, काशिफ इकबाल बात कर रहा हूँ सर। मैं अपना स्टेटस जानना चाहता हूँ। काशिफ इकबाल साहब, आपके पास इसका लॉगिन पासवर्ड होगा, वो लगा के आप खुद चेक कर सकते हैं। कितने करने के लिए अप्लाई किया आपने? सर मेरा तकरीबन 2 माह हो गए अप्लाई किए हुए और अभी तक 3 टिक पे रुका हुआ है, 4th टिक नहीं आ रहा। और बैंक से मैं पता करता हूँ, वो कहते हैं कि आपका डाटा अभी तक शेयर ही नहीं किया गया हमारे साथ। अभी वेट कर लेना, अभी आपको टाइम लगना है मजीद इसमें। सर कुछ बता सकते हैं कि वैसे क्राइटेरिया क्या है, कितना टाइम आप रेकमेंड करते हैं? अभी मजीद आपको 21 दिन लग सकते हैं कम अज कम। तो आई थिंक 21 दिन का तो टोटल उन्होंने टाइम नहीं था दिया कि इतना टाइम पीरियड लगेगा। अभी टाइम बढ़ा दिया, ज्यादा डाटा होने की वजह से ना टाइम बढ़ा दिया गया है। 45 डेज तक का टाइम कर दिया गया। अब 45 डेज का टाइम कर दिया गया। अच्छा सर, मुझे ये बता सकते हैं कि इसमें जो अमाउंट आप सेलेक्ट करते हैं मुख्तलिफ, वो किस बुनियाद पे कर रहे हैं? डिमांड जो हमने 10 लाख की हो, किसी को 1 लाख दे देते हैं, 2 लाख, मुझे कितनी मिलेगी मेरे रिकॉर्ड के मुताबिक? तो जब आपको मिलेगा तब आपको बता दीजिएगा। वो इस तरह होता है, आपकी क्रेडिट असेसमेंट को देखते हुए, क्रेडिट क्रेडिबिलिटी को देखते हुए जज किए जाते हैं, उतनी बनती है। वो आपने फॉर्म में जितनी रकम लिखी होती है ना, उस हिसाब से वो आपके जितने बनते होते हैं वो दिए जाते हैं। सर इसका वापसी का क्या सीन है, वो कुछ गाइड कर 3 सकते साल हैं? की किस्तें, 5 साल के 3 साल की किस्तें, पहले 3 महीने कोई किस्त नहीं देनी, फिर 3 महीने 5% देनी है, फिर आप फाइलर होंगे, बाकी फिर 3 महीने कोई नहीं देनी, फिर 3 महीने 5% देनी है। जितनी रह जाएंगी वो आपको बाकी 24 किस्तों में देनी है। सर जी 5% जो आप कहते हैं देनी है, वो टोटल 3 महीनों में 5 किस्तों में 5% देनी है, या हर किस्त 5% करके देनी है? नहीं, हर किस्तें पहले 3 नहीं देनी है, उसके बाद जो 3 देनी है वो 5% देनी है। तो सर ये मुझे ये भी कंफर्म कर दें कि जो है फाइनेंस वाला, वो अभी अप्लाई हो रहा है? जो अभी अप्लाई करें तो उस पर अमल हो रहा है कि वो भी बंद कर दिया गया है? फाइनेंस की टाइप 1 जो है बंद कर दी गई, जिसमें 50 लाख तक का लोन। अस्सलाम वालेकुम, हुकूमत पंजाब की आसान कारोबार हेल्पलाइन की जानिब से सर बात कर रहा हूँ, जी फरमाइए। वालेकुम अस्सलाम जी, सर काशिफ इकबाल बात कर रहा हूँ। मैं अपना आसान कारोबार कार्ड के लिए अप्लाई किया था, मैंने तकरीबन मार्च के 39 डेट को, तो 29 डेट को। उसका सर स्टेटस जानना चाहता था कि अप्रूव हो रहा है नहीं हो रहा, क्या सीन है? इन प्रोसेस है, लेकिन स्टेटस आप खुद ही चेक कर सकते हैं। कितनी वेरिफिकेशन शो हो रही है आपको? 3 वेरिफिकेशन शो हो रही है पिछले 20 से 25 दिन से। ठीक है, 3 वेरिफिकेशन शो हो रही हैं। बैंक ऑफ पंजाब की वेरिफिकेशन भी जल्द अपडेट कर दी जाएगी इंशाल्लाह। एक्सपेक्टेड यही है कि इसी मंथ के अंदर अंदर जिन लोगों की बैंक ऑफ पंजाब की वेरिफिकेशन नहीं आ रही, अपडेट हो जाएगी। अरे सर ये बताएंगे कि जिन लोगों के अभी मेरी एक एप्लीकेशन है उस पर जस्ट 1 टिक है, जी, उसके भी कोई काम हो रहा है कि वो खत्म है? कब आपने अप्लाई किया था उसमें? वो मैंने किया था 6 अप्रैल को। उस पर भी काम जारी है। अच्छा, तो सर इसका वापसी का क्या सीन है, मुझे थोड़ी डिटेल बताना पसंद करेंगे? जी, इसमें आप 3 साल में वापस करेंगे अगर कार्ड में अप्लाई किया। 3 माह बाद आपकी किस्त स्टार्ट हो जाएगी। जब किस्त आएगी तो अब बैंक ऑफ पंजाब बजरिया SMS या मेल आपको इस हवाले से बता भी देगा कि कितनी किस्त है और कहाँ पे करनी है। सर वो सुनने में आ रहा है कि पहले कोई 3 माह के बाद 3 माह 5% देना पड़ेगा, वो क्या सीन है सर? उसमें ऐसा है ना कि 3 माह बाद चौथे माह बाद 3 माह बाद चौथे माह आप करेंगे 5%। जो आपको अमाउंट दी जाएगी ना हाफ, उसका 5% आपने पे करना होगा। फिर 5वें माह जो रेस्ट अमाउंट बच जाएगी उसका 5%, छठे माह भी 5%। इसी तरह नेक्स्ट 6 मंथ में यही प्रोसीजर रहेगा। जो मेजर एरिया बच जाएगा ना लोन का, उसकी 24 इंस्टॉलमेंट बना दी जाएंगी 2 साल के लिए। सर फॉर एग्जांपल अगर 10 लाख रुपया आता है तो उसका 5% तो 50,000 बनता है। जी, अगर 10 इसमें हाफ अमाउंट आपको पहले आती है ना। जिस तरह अगर
10 लाख है और 5 लाख आपको पहले दिया जाता है, तो 25,000 उसका 5% बनता है। फिर वो 25,000 5 लाख में से माइनस हो जाता है, 4,75,000 का 5% बनेगा 5वें माह। अच्छा सर, जी मुझे ये बताएं, अब जो कार्ड हमें मिले हैं, मैं इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहा हूँ आपसे, माइंड ना कीजिएगा। कार्ड जो साथ वो जो वोचर आता है उसके ऊपर लिखा हुआ है 1,30,000 रुपये। मेरे कार्ड में से 1,30,000 रुपये निकले हैं, उसकी दूसरी इंस्टॉलमेंट मुझे मिलने की उम्मीद है? जी, वो हाफ अमाउंट आपको पहले 6 माह में और हाफ अमाउंट आखिरी 6 माह में दिया जाता है। तो आप रखिए उम्मीद और इस हवाले से कंफर्म कीजिए बैंक ऑफ पंजाब से कि आपको कितना अमाउंट अलॉट किया गया है हुकूमत की तरफ से। सर मैं वही तो कह रहा हूँ कि उनसे पूछा तो उन्होंने कहा जी 1,30,000 आपका मंजूर हुआ है, और जी 1,30,000 मेरे कार्ड में आ गया है, मैंने निकाल लिया है। तो जी दूसरी उसकी इंस्टॉलमेंट सर कैसे मिलेगी, जबकि आपका ने जो 10 लाख जिनका अप्रूव हुआ उनका 9,71,000 रुपया उनके कार्ड से निकल आया है एकदम ही, जी इकट्ठे ही, एक ही जी पहली दफा में। तो उनको दूसरी जी किस्त जी कैसे मिलेगी? 10 लाख तो अप्रूव हुआ तो 9,71,000 निकल आया टैक्स वगैरह काट के। बिल्कुल सही कह रहे हैं। पहले पहले जब इसमें आपको जो अमाउंट दिया जा रहा था वो इकट्ठे ही दिया जा रहा था, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता बैंक ऑफ पंजाब ने देखा, वेबसाइट पर यही मेंशन था 50% आप पहले यूज़ के लिए पहले 6 माह में इस्तेमाल करें। सॉरी मैं आपको टोक रहा हूँ, ये आप जी थोड़ा सा मेरे ख्याल में थोड़े चेक कर लें एक दफ़ा। पहले जो शुरू में जो कार्ड दिए गए हैं वो हाफ अमाउंट में दिए गए हैं, उसके बाद अब जो कार्ड आ रहे हैं उनमें ये प्रॉब्लम आ रहा है कि जिसका 10 लाख मंजूर होता है उसे 9,71,000 उसका निकल आता है। मैं ये चीज़ ठीक है। अभी क्लियर भी जो करना चाहता अमाउंट दिया जा रहा है वो 9,71,000 रुपया दिया जा रहा है डायरेक्टली। हूँ। जी जी, गए उसके कार्ड के ऊपर तो वोचर आता है ना, साथ लिखा हुआ, उस पर लिखा हुआ है कि 10 लाख रुपया आपका अप्रूव हो गया है। हेल्पलाइन पे भी मैंने ठीक पूछा है। जी मेरा 10 लाख रुपया अप्रूव हो गया है। तो मैंने जी जब जी उसे विड्रा करने के लिए गया हूँ उधर से मेरा विड्रा हुआ है 9,71,000 रुपया टोटल उस कार्ड पे। ठीक है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये एक ही इंस्टॉलमेंट बस बात खत्म है कि अभी है कोई सीन दूसरी इंस्टॉलमेंट का? क्योंकि 10 लाख का तो टोटल लोन था मेरा। जी जी ऐसी इसमें कोई सर आपको अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं, जिस तरह आप 5% सही देते रहते हैं, 5% टाइमली और एक्टिव आप इसमें फाइलर हो जाते हैं, तो फिर आपको चांस होते हैं दूसरा लोन भी आपको दिया जा सकता है अगर एलिजिबल होते हैं तो। अरे सर ये मुझे ना थोड़ा सा कंफर्म करके ये बता दें कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, हमने उनका अप्लाई जी किया हुआ, उनके 3 टिक हो गए, नादरा वेरीफाई हो गया, एक्साइज वेरीफाई हो गया, पीएमडी वेरीफाई हो गया, बैंक ऑफ पंजाब में वो अंडर प्रोसेस है, शो नहीं हो रहा डाटा आया कि जी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उसमें कोई इशू तो नहीं है, वो हो जाएंगे? क्योंकि बैंक से मैंने पूछा, उन्होंने क्लियर किया, उन्होंने कहा बैंक ओके है। लेकिन आप मुझे चेक करके थोड़ा सा बता दें, आपकी मेहरबानी होगी, तो तसल्ली बख्श जवाब हो इसका। सर अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है ना तो हम्म, फिर वो एलिजिबल नहीं है डिपार्टमेंट एंड से जो इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है। अच्छा। जी तो उसे क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अब रिजेक्ट तो आपके करना चाहिए था ना, यहाँ उसमें नादरा रिजेक्ट करती तो वो अब तो पहुंच गया बैंक ऑफ पंजाब में, उसका डाटा पहुंच चुका है, नादरा वगैरह ने तो उसे ओके कर दिया हुआ है। जी बैंक में तो उसकी स्टेटमेंट देखनी है, उसकी उन्होंने बैंक करप्ट देखना, वो तो क्लियर है हर लिहाज से, वो कैसे रिजेक्ट करेगा उन्हें? वही बता रहा हूँ, यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वही है कि एलिजिबल नहीं है वो। तो अच्छा बैंक ऑफ पंजाब जो है आपकी जो मालियाती डिटेल्स के अलावा भी तमाम जो एप्लीकेशन को एक दफ़ा फाइनलाइज करता है, मालियाती डिटेल्स के अलावा भी एक दफ़ा तमाम चीज़ों को फाइनलाइज करने के बाद आपका लोन अप्रूव किया जाता है। ये जो आपको वेरिफिकेशन शो हो रही होती है ना, ये इनिशियल वेरिफिकेशन शो हो रही होती हैं, उसके बाद फाइनलाइजेशन जो होती है वो बैंक ऑफ पंजाब की तरफ से की जाती है। अच्छा सर, एक लास्ट क्वेश्चन, ये आपने वैसे इसमें जवाब तो उसका भी मिल गया है, कुछ हमारे आए हैं कि हमें नादरा ने रिजेक्ट किया है, यानी कि बैंक ने रिजेक्ट किया है, लेकिन हमने जब बैंक से पूछा ना, उन्होंने कहा कि हमने रिजेक्ट नहीं किया, नादरा ने रिजेक्ट किया आपको। ये क्या सीन है, जबकि नादरा का टिक लगा होता है इधर? वो गलत गाइड कर रहे हैं आपको। वो गलत गाइड कर रहे हैं। चलें सर, थैंक जी यू, अल्लाह पाक आपको आसान कारोबार हेल्पलाइन पर कॉल करने का शुक्रिया। कॉल फीडबैक से ट्रांसफर की जाए।